Excellent, Zabardast. Thank you, Atik, for inviting me for this session. Very excited to be here. I see a very, very enthusiastic young crowd. Although I'm not able to see them, but I'm pretty sure and hopeful that they are enthusiastic and that they are young. बहुत मुझे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों से बात करने की. आई ऑलवेज पर्सनली फील वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यंग पीपल बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच एनर्जी. और मैं अभी बल्कि आज अपनी वाइफ से ये डिस्कस कर रहा था कि जो है ना, मुझे लगता है मेरी अपनी एनर्जी एज के साथ साथ थोड़ी सी कम हो गई है. बट द वे आई मेंटेन दैट एनर्जी इज बाय टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल एंड बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ दोज यंग पीपल. और जो आई थिंक एक वो मुहावरा है जो मैं काफी ज्यादा कहता हूँ और हर कोई कहता है, द फ्यूचर इज यंग. सो आई थिंक बीइंग इन प्रेजेंस ऑफ यंग पीपल गिव्स me that energy to think big, think 10x, which is actually something I'm going to talk about today as well. और उसकी कहने का ये मकसद है कि जो यंग लोगों की एक एनर्जी होती है ना, दैट काइंड ऑफ गिव्स यू द पावर, द अपॉर्चुनिटी टू थिंक डिफरेंटली. एंड बेशक आप खुद एक यंग ना रहें, बट यू कैन ऑलवेज बी इन प्रेजेंस ऑफ यंग पीपल बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ जनरेशन that will follow you. So you always have that opportunity to first do things yourself, and then find other people who you can mentor, or who with whom you can be a part of, जिनके साथ आप चीजें कर सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं. Before I jump on to my session for today, which is actually on 10x thinking, I'm just also going to share the deck. uh, so before I jump onto it, before I get into this thing कि यार अच्छा 10x thinking क्या होती है, क्यों हमें गूगल में 10x thinking का बताया जाता है, why it's so important, मैं अपना क्विक इंट्रो भी कराऊंगा. बट आई रियली वांट टू I want to thank Atik here, who has been such an amazing community builder, not just for your university but overall for Pakistan. And he's the first DSC lead in your university, if I remember correctly. आप लोगों की यूनिवर्सिटी का पहला चैप्टर है जो स्टैब्लिश हुआ है. और दिस इज जो फर्स्ट मूवर्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज द they are the trend setters, but they also have to work really really hard, because they have to put the foundational stones to whatever that's going to be followed on, जो भी लोग उसको follow करेंगे. So a big thanks to Atik, a big thanks to the core team members that he has. यहाँ पे कुछ मेरे पास नाम है, अब्दुल रऊफ हैं जो ग्राफिक्स करते हैं, तरुण है, बहावल हैं जो पाइथन का बूट कैंप जिन्होंने हेल्प किया है, अली शान जिन्होंने फ्लटर के बूट कैंप में हेल्प किया. सो आई थिंक दीज आर some of the, and इसके अलावा there are a lot of people. I know there are members, I know there are core team members, I know there are a lot of people out there who put this together. And then there's like a whole bunch of achievements which I'm looking at, which in the end Atik can maybe share with you folks in detail. But there's like so much stuff that's happening that you folks have been able to do, and you folks have been a part of. और अभी काफी ज्यादा आगे चीजें आ रही हैं. साइबर सिक्योरिटी बूट कैंप आ रहा है, डिजाइन थिंकिंग बूट कैंप आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं. सो really really would like to congratulate. And I think going back to जो आज का टॉपिक है, all of this was made possible because a bunch of young people came up with the idea of कि यार हमने कुछ 10x करना है. 1x वाला अब जमाना ही नहीं है कि यार मैंने सिर्फ जो है ना ये एक चीज करनी है. अब वो जमाना है कि यार 10 चीजें करनी है और इस तरह करनी है कि लोगों को पता लगे और इम्पैक्ट क्रिएट हो. सो that's the kind of the 10x mindset. सेशन को आज थोड़ा सा मैं इस तरह रखूंगा कि I will try to share some of the learnings for 20-30 minutes, and then I want to open it up. तो हम क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप लोग मुझसे सवाल, या आप लोगों के जहन में कोई सवाल है वो पूछें. इसी तरह मैं भी आपको एंड में, I've been working on something as well, a personal project, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा. बट ओवरऑल अच्छा ज्यादा ये रहता है कि मैं इंस्टेड की बातें करता रहूं. मैं जो है आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा अबाउट व्हाट 10x थिंकिंग इज, व्हाई वी प्रैक्टिस इट एट गूगल. गूगल ने किस तरह यूज किया, कैसे आप अपनी जिंदगी में 10x थिंकिंग को ला सकते हैं और उसको यूज करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं. So this session is going to be all about leadership, 10x thinking, and all those things. So पहले जल्दी से इंट्रो दे देता हूँ अपना.
So I work at Google in a team called Developer Relations and Ecosystem. और मेरे पास जो कंट्रीज हैं जिनको मैं मैनेज करता हूँ, उसमें से जो मेन कंट्री जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज पाकिस्तान. Very proudly, based, born and bred in Pakistan, and a very proud Pakistani myself. But इसके साथ साथ there are other countries that I manage as well. So बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है. और मेरा ये काम है कि कैसे मैं नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट जो दुनिया में आ रहे टेक टैलेंट, उनको इनेबल कर सकूं. दैट्स एंड कैसे मैं गूगल में इस टैलेंट की एक वॉइस बन सकूं और कैसे मैं इस टैलेंट के सामने गूगल की एक वॉइस बन सकूं. So that's those are some of the things that I do at Google. And ये आप देख रहे हैं कुछ फोटोज है बड़ी जबरदस्त सी. ये वो सारे इवेंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं. अब तो पिछले साल तो हमारे फिजिकल इवेंट्स ज़्यादा नहीं हुए, but we've been able to do some really really amazing activities throughout the year. So it's I feel very privileged to be working with young people all across Pakistan. So एक तो यहाँ पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मैं एग्जांपल जो है ना कोट करना चाहूंगा, बिकॉज दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू 10x थिंकिंग. सो जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि वी चूज टू गो टू द मून. और ये बड़ा, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट इनका एड्रेस था, जिसमें वो कहते हैं कि वी चूज टू गो टू द मून नॉट बिकॉज इट्स इजी बट बिकॉज इट्स हार्ड. और आई थिंक एक जो चीज है जो स्टूडेंट्स को काफी लर्न करने की जरूरत है या जिससे वो फायदा उठा सकते हैं, इसलिए वो ये है कि अगर आप मुश्किल चीज पहले कर लेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी. अगर आप आसान चीज पहले करने का सोचेंगे तो आपकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल में रहेगी. और ये बड़ी एक वियर्ड सी चीज लगती है, बट दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड फॉर माई सेल्फ एज वेल. इफ यू पुट इन टाइम टू सॉल्व द हार्डेस्ट and hard problems first, then you will be able to very easily do the rest of the things. लेकिन अगर आप कहेंगे कि यार अच्छा मैं इजी काम कर लेता हूँ, शॉर्टकट आज ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर सकेंगे टू डू द हार्ड थिंग्स. और ये एक्चुअली यूएस ने किया. सो दे डिसाइडेड टू गो टू द मून in very early, like back in the 1960s. क्यों? Because it was the hard thing to do, it was the impossible thing to do, but they did it because it was the hard thing. So they could bring in all the knowledge, all the power of their community, their best experts to solve kind of a hard problem. और I think हमने पाकिस्तान में हम क्या कहते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन हम ये नहीं ढूंढते कि यार अच्छा मैंने अगर जो है कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं मुश्किल प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करूं. सो दैट इज आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट, कि अगर आप लोग मिल के आगे, बल्कि सोल्यूशन चैलेंज भी आ रहा है गूगल का, तो थिंक अबाउट द हार्ड प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व व्हिच कैन वाओ पीपल. सो दिस मोमेंट इज वन मोमेंट दैट द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट. द यूएस वाज एबल टू स्टेप ऑन द मून. सो थिंक अबाउट व्हाट इज योर मून शॉट. और इसका आगे बल्कि जिक्र भी होगा. ये जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर है जब मून पे गए, जो उन्होंने वो वहां पे किया. इसको वो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मून शॉट थिंकिंग. सो एक जो चीज बहुत लैक करी है पाकिस्तान में, मैंने देखा है, वो ये है कि हम मून शॉट्स के बारे में नहीं सोचते. हम सोचते हैं कि यार अच्छा चलो कोई एक बना लेते हैं, एप्स ही बना लेते हैं, उसके बाद जो है ना कोई फ्रीलांसिंग कर लेंगे, तो जो है ना थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे हाथ में, घर वालों को भी खुश कर देंगे, शादी हो जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी. हम ये नहीं सोचते कि यार मैंने एक ऐसी ऐप बनानी है या मैंने एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जो कि पूरे पाकिस्तान में, क्या मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से बाहर लोग भी यूज करें. एंड आई कैन टेल यू ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु डिड दिस. वन ऑफ माय वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स and one of the very very inspiring people that I know is Muneeb Mayer, who's now the founder and CEO of Baikia, which is one of the top startups of Pakistan. मुनीब ने आज से काफी साल पहले, 5-6 साल पहले, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था दराज. मुनीब वाज द फाउंडर फॉर दैट. और मुनीब ने कहा कि मैं दराज को बनाऊंगा, एंड दराज विल नॉट ओनली बी फॉर पाकिस्तान, दराज विल बी फॉर बांग्लादेश, फॉर नेपाल, फॉर श्रीलंका. और आज भी अगर आप जाके देखें तो दराज is a rare product to come out of Pakistan, which is actually a regional product. तो सोच बड़ी करें. Think about moonshots. Think about things that are incredibly, seemingly impossible ideas, कि जिनको सॉल्व करने में आपको मजा आए और
आपका जो है ना ब्रेन फील करे कि यार जो है ना कोई जान लगी है। तो मून शॉट्स 10x थिंकिंग का बेसिकली मकसद क्या कहने का कि आप मून शॉट्स के बारे में सोचें, थिंक अबाउट द बिग प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक आपको पिक्चर नजर आ रही होगी एस्ट्रो टेलर की। सो गूगल में बहुत सारी डिविजन हैं, इसी तरह एक डिवीजन जिसका नाम है एक्स, उसको लीड करते हैं एस्ट्रो टेलर। और ये क्या कहते हैं कि लीप्स ऑफ इनोवेशन रिक्वायर ब्रेवरी दैट बॉर्डरलाइंस एब्सर्डिटी, कि आप इतना एक एम्बिशियस गोल बनाएं कि यार लोगों को उससे डर लगे, आपको भी डर लगे, बट यू ऑल्सो फील वेरी पैशनेट, यू ऑल्सो फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। So I think the best recipe is when you feel scared, but you also feel excited. And when you know both of these two things come together, that is the best kind of time to build on a new kind of an idea. और ये आपको नजर आएगा गूगल के प्रोडक्ट्स में। जब गूगल ने एक जमाने में, आई बीन वेरी लकी टू एक्चुअली टेक अ राइड इन वन ऑफ दीज कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एंड इट्स एक्चुअली मैजिकल व्हेन यू सिट इन वन ऑफ दोस। आपको यकीन नहीं आता कि यार कैसे गाड़ी खुद चल रही है। और मैंने तो आई थिंक जो इसका एक टूर लिया था वो भी आज से काफी साल पहले था, इट वाज 5 years बैक। तो अब तो ये दे हैव transitioned into very very viable real products which are actually out there in the real market and out there in the streets. तो ये सोचें कि यार किस तरह एक दिन उन्होंने कहा होगा बैठ के कि यार अच्छा चलो मैंने गाड़ी नहीं बनानी, मैंने सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी बनानी है। और आप सोचें, मैं अभी भी सोच रहा हूँ, आई नो देयर इज अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन इंडिया, आई हैव नॉट सीन मेनी प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। यार किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि हम एक सेल्फ ड्राइविंग मेहरान बनाते हैं या हम एक सेल्फ ड्राइविंग मोटरसाइकिल बनाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आजकल लोग काफी ज्यादा एआई और मशीन लर्निंग में लोग F5Ps में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बट दीज आर द काइंड ऑफ मून शॉट्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। और खास तौर पे जब मैं मोटरवे पे जाता हूँ ना इस्लामाबाद से लाहौर, तब मैं सोचता हूँ कि यार दिस इज द परफेक्ट स्पॉट टू हैव अ सेल्फ ड्राइविंग कार। तो व्हाई डोंट वी हैव अ सेल्फ ड्राइविंग कार येट? सो अगेन थिंक अबाउट दीज मून शॉट्स, थिंक अबाउट दीज क्रेजी आइडियाज। इसी तरह लून एक प्रोजेक्ट है गूगल का बड़ा मशहूर, which was also moonshot, कि कैसे हम drones को यूज करते हुए we can actually put internet out there in the stratosphere. फिर वेरीली है कि कैसे हम कॉन्टेक्ट लेंसेज बनाएं जो कि नॉन इन्वेसिव हो, एंड दे कैन एक्चुअली मॉनिटर योर हार्ट रेट एंड अदर ब्लड लेवल्स और ये सारा, जिससे अगर आपकी शुगर लो हो रही है, तो ये इन्होंने इसलिए बनाया था कि वो पेशेंट जिनकी शुगर लो हो रही है उनको आप अंदर ही पता लग जाए कि अच्छा शुगर लो हो रही है, दे आर एबल टू सी इट एंड देन दे एबल टू टेक द राइट काइंड ऑफ एक्शन। और ये सिर्फ गूगल नहीं है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अच्छा ये तो बातें सिर्फ गूगल में ही हैं, या ये टेक कंपनीज बाहर की इस तरह के काम कर सकती हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक कंपनीज एज वेल, कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स आर डूइंग दिस। सो नेटफ्लिक्स इज नॉट जस्ट सामने तो आप सिर्फ मूवी या शोज ही देखते हैं, लेकिन बैक एंड पे देयर इज अ lot of hardcore engineering that is going on. There are a lot of data scientists at work who see कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आएगा, और फिर जब उनको नजर आ रहा होता है कि जी अच्छा पॉलिटिकल ड्रामा जो है ना वो पाकिस्तान में बड़ा हिट हो जाएगा, या वो क्वींस गैम्बिट बड़ा हिट हो जाएगा, तो that's how they are able to come up with these kind of, there is a lot of data science that's being applied to all of this. Airbnb है, recently Airbnb went public. So it's another very great example of taking a moonshot and solving a very very radical idea. Tesla, we all know Tesla. Yesterday Elon Musk became the richest man in the world as Tesla की जो price hike हुई है। So again these are tech companies, big ones, but that does not stop you from creating your own moonshot idea. That does not stop you from having your own crazy idea कि यार पाकिस्तान में तो मैं ये बनाऊंगा और that's how I'm going to change the world. And it's not just companies. It starts with individuals. It starts with people like you. बड़े आम से लोग होते हैं भाई जिन्होंने दुनिया बदलनी होती है, मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज ये लोग कोई जो है ना बहुत रेयर होता है कि आपको जो है ना वो पैशन विरासत में मिले। पैशन विरासत में नहीं मिलता। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपके फादर पैशनेट थे तो आप भी पैशनेट होंगे। पैशन कम्स फ्रॉम विद इन, passion comes from inspiration, passion comes from experiences, passion comes from ecosystem, passion comes from community, passion comes from peership, passion comes from learning. ये वो सारे ingredients हैं जिसकी वजह से you can be who you want to be. And you go and read up stories of people like
क्या नाम है, स्टीव जॉब्स, आप बल्कि स्टीव जॉब्स को छोड़ें, स्टीव जॉब्स तो बेचारा बहुत ही रुल गया पाकिस्तान में, क्योंकि हर जगह उसी की एग्जांपल यूज हो रही होती है। आप जाके जैक मा की स्टोरी पढ़ें। आई रेड अ बुक ऑन जैक मा लास्ट ईयर कॉल्ड द हाउस Alibaba, the house that Jack Ma built. That's a phenomenal story. Just go and read it. कि किस तरह Jack Ma, who was actually the son of a farmer, transformed the whole landscape of internet in China. And he himself is one of the most humble people. I've had the opportunity to meet him twice. कुछ शायद लोगों ने, आई डोंट नो अगर कोई मुझे फॉलो करता है, लेकिन लिंक्डइन पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखी होंगी स्टोरीज जिसमें 2 दफा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आई गॉट टू आस्क अ क्वेश्चन टू जैक मा, and it's he's been one of the most inspirational people that I've met, and he's just like you and me. उसको कोई वहां पे ये नहीं हुआ था कि उसको कहा होगा कि यार ये तुम्हारे पास पैसे हैं, जाके जो है ना कंपनी बना लो। वो भी आपकी मेरी तरह ही था, वो भी यही वाले मसले जो है ना डील कर रहा था। और आपको पता है जैकमा को सबसे बड़ा मसला क्या था? जैकमा को सबसे बड़ा मसला था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। आपको और मुझे तो फिर भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। जैकमा ने तो पूरे अपने 10-15 साल अंग्रेजी सीखने पे लगा दिए थे, और उसके बाद उसने जो है ना जाके ही स्टार्टेड बिल्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज इट स्टार्ट्स विद यू, but it doesn't end at you, and that's the most inspirational thing. तो एट द एंड आप ये पूछ सकते हैं अपने आप से कि भाई व्हाई मी, मैंने ये क्यों करना है? तो इसका जवाब तो आप खुद ही अपने लिए निकाल सकते हैं। आई थिंक द बेस्ट आंसर दैट आई फाउंड फॉर माई सेल्फ इज बिकॉज doing something like this is an opportunity for growth. Doing this is an opportunity to make new connections. Doing this is an opportunity to change the life, not just my life, but the life of many people out there. तो ग्रोथ माइंडसेट का जो ये जो है ना वो एक पॉइंट है, वो ये है कि यू हैव टू ग्रो कंसिस्टेंटली, एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू डेवलप दिस काइंड ऑफ अ 10x ग्रोथ माइंडसेट। तो एंड में कुछ पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो मैं थोड़े से बताना चाहूंगा, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट के बाद आई वांट टू ओपन इट अप, ताकि हम जो है ना वी कैन हैव लाइक सम लाइव Q&A एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन इंस्टेड कि मैं सिर्फ बोलता रहूं। वो ये है कि ऑन बोर्ड फ्रेश माइंड्स टू हेल्प यू डिसरप्ट इन योर कम्युनिटी। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी at the core of things is the most beautiful thing that you can do to solve problems and to create an environment which is very thriving. और इस हम जरा से अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि हमारे मुल्क में, आप लोग तो फिर भी माशाल्लाह कराची से बिलोंग करते हैं सारे या उस साइड पे रहते हैं, तो कराची में डाइवर्सिटी जरा ज्यादा है। हम इस्लामाबाद वाले जो बेचारे हैं ना, वो बड़े होमोजीनियस से क्राउड में पले बड़े हैं, तो हमने डाइवर्सिटी ज्यादा देखी नहीं। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि बंदा जिस रिलीजन से हो, बंदा जिस जेंडर से हो, बंदे का जो बैकग्राउंड हो, गरीब हो अमीर हो, उसको कोई एक टेक्नोलॉजी पसंद हो, उसको कोई और मसला हो ना हो, वो जैसा भी हो, you are inclusive and open to accept that person for who they are, and you are able to use their strengths to be able to push your agenda forward. And this I've seen, ये मैंने, सच्ची सी बात है, मैंने भी गूगल में इससे पहले ये कभी रियलाइज नहीं किया था गूगल में, लेकिन मैंने आके देखा कि कैसे दुनिया में टीम्स हैं हु आर डाइवर्स। इट डजंट मैटर व्हाट टीम मेंबर, हमारा कोई टीममेट है, उसका रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो किस चीज पे बिलीव करता है या करती है, या बिलीव नहीं करता, बट द वैल्यू इज वेरी कॉमन। द वैल्यू इज कि यार हमने कोई ऐसी चीज बनानी है जो कि लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव करे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपके सर्कल में if you have people from the same religious background, if you have people from the same gender, if you have people who believe the same things, then it is a little troubling because you're not onboarding fresh ideas. और इसका ये भी मतलब है कि आप एज, आपके दोस्त होने चाहिए जो आपके आपसे एज में बड़े हों, आपके ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपसे एज में छोटे हों, जेंडर जिनका डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो ना हो, जिनकी एथनिसिटी डिफरेंट हो। डाइवर्सिटी इज एट द कोर इफ यू वांट टू इनोवेट एंड यू वांट टू डिसरप्ट। सो एक तो जो है ना बड़ा की पॉइंट में ये आपको देना चाह रहा था कि अपने
क्राउड से, अपने दोस्तों के सर्कल से निकलें और जाके नए वो बनाएं। डीएससी में आपको बहुत बड़ा फायदा ये है कि दुनिया में इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं, so you can make friends with more DSC members around the world. So that's one way of putting it on how to onboard fresh ideas. The second thing is to question everything and everyone. I've been very lucky in my life कि मैंने हर चीज को बड़े सही तरीके से हर पॉइंट पे क्वेश्चन किया कि क्यों चीजें ऐसी हैं। जिस तरह जब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद जो है ना आपको तो टेलीकॉम की जॉब करनी चाहिए, तो मैंने पूछा कि भाई क्यों, मुझे तो ये शौक नहीं है, मुझे तो शौक है कि मैं नए आइडियाज पे काम करूं। तो बड़े अरसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आइडियाज कुछ नहीं होते आप सिंपल सी एक नौकरी ढूंढे, उधर काम करें। लेकिन मैंने उनको फिर टाइम प्रूव किया कि उनके जो जमाने में चीजें चल रही थी, दोज थिंग्स डू नॉट हैव टू डिफाइन माय फ्यूचर। और इसका एक वर्ड भी है, ये बड़ी मशहूर सेइंग भी है स्टीव जॉब्स की, which is on dogma. इसका वर्ड का नाम होता है डॉगमा। सो व्हाट डॉगमा डज इज, डॉगमा सेज कि यार जो है मेरे पेरेंट्स ने तो ये किया था और ये चीज सही है तो मैं भी यही करूंगा। जबकि एक्चुअली डॉगमा इज अ वेरी like a dangerous way of limiting yourself to new ideas, to new opportunities, to new things that are out there in the world. So do not let dogma define your life and limit your life. Rather, you should be the one who should question everything. तो अगर आप में से कोई लोग हैं जो कि कोई एक अनोखी चीज बनाना चाहते हैं, कोई एक नया करियर बनाना चाहते हैं और आपको आगे से लोग रेजिस्ट करते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड योर वे थ्रू इट। और उसका सही तरीका ये होता है कि आप लोगों को आगे से जो है ना लोगों को भी साथ लेके चलें। ये अच्छी अप्रोच नहीं होती कि आप जाके पेरेंट्स को कहना शुरू कर दें कि आप तो गलत है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। जो कि आजकल कुछ यंग लोग इस तरह भी थोड़ा सा ट्राई टू बी रिगार्डफुल एंड ट्राई टू ऑल्सो मेक देम अंडरस्टैंड कि जो आप चीज कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। सो यू नो योर फ्यूचर बेस्ट, बट ऑल्सो ट्राई टू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड एवरीवन, and try to do not assume everything. Try to create new assumptions as you move into this new world and you try to solve problems in this new world. Generate ideas as if sky is the limit. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यार आइडियाज जो है ना, आपके पास एक आइडियाज की बुक होनी चाहिए, आपके पास एक गूगल डॉक होना चाहिए। उस गूगल डॉक पे आपको जो नए नए आइडियाज आते हैं ना, आप बस लिखते जाएं। एंड दोज आइडियाज कुड बी अबाउट एनीथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, जो मुझे रिसेंट सबसे ज्यादा क्रेजी आइडिया आया है वो था इज टू इन्वेस्ट इन अ कार बेस्ड स्टार्टअप। अब मेरा कार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे खुद मैनुअल गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे सिर्फ ऑटो आती है, क्योंकि मेरे जो माँ बाप है उनको लगा था कि अगर मैं मैनुअल सीख लूंगा तो मैं आवारागर्दी करना शुरू कर दूंगा, तो उन्होंने मुझे गाड़ी जो है ना मैनुअल नहीं सीखने दी। दैट डज नॉट मीन कि अगर मुझे गाड़ी मैनुअल चलानी नहीं आती आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ कार बेस्ड स्टार्टअप। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ट्राई टू पुट ऑल योर आइडियाज इनटू वन प्लेस एंड ट्राई टू सी कि यार ये आइडियाज हैं जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में पूरे करने। एंड trust me, when you wake up every day and you see that list, you will be so excited because you'll be so motivated, because there's just so much to do. There's so many problems out there to solve. There's so many business opportunities जहाँ पे आप value create कर सकते हैं और साथ साथ you can make money as well. So generate ideas as if sky is the limit. Prioritize and select what you want to work on. इसका कहने का मकसद ये है कि स्टूडेंट लाइफ में खासतौर पे मैं बहुत सारे देखता हूँ, स्टूडेंट्स ना अपनी हर जगह टांग अड़ा लेते हैं। तो कहते हैं हमने ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। एंड पे जब आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि अच्छा बेटा तुमने किया क्या है, तो वो दिखा नहीं सकता। तो मेरी स्टूडेंट्स को ज्यादातर पे सजेशन होती है कि आप अपनी टांग अड़ाएं बेशक, लेकिन एक दो जगह से ज्यादा ना अड़ाएं। एक चीज को या दो चीजों को साथ लेके प्रॉपरली उसको डिलीवर करें। डिलीवर करने के बाद बेशक दूसरा प्रोडक्ट उठा लें। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में मैंने काफी ज्यादा चैलेंज देखा है कि वो जो है ना बीच बीच में चीजों को छोड़ देते हैं। दे आर नॉट एबल टू टेक थिंग्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर। सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज, ट्राई टू सी
कि हाउ व्हाट इज दैट प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू पिक ऑन, और कैसे आप उसको घर तक पहुंचाओ, कहते हैं ना मजाक में घर तक पहुंचाएंगे, तो घर तक पहुंचाएं उस प्रोजेक्ट को. ट्राई टू स्पेंड इनफ टाइम इन दैट प्रोजेक्ट एंड ट्राई टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि आपको अंदर बाहर से उसका पता हो कि वो चीज़ क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू, लेकिन उसके मसले क्या हैं, किस तरह से होता है. लाइक जस्ट go a little bit deep into prioritizing what you want to work on, and then do a very, very good job at it. Fuel the best ideas with effort, resources and time. अपने पास जो आपके आइडियाज हैं उनको देखें, और उनको देख के साथ साथ रियलाइज करें कि कौन से आपके आइडियाज हैं जिनको आपने आगे लेके चलना है. काफी ऐसे आइडियाज थे, आइडियाज हैं मेरी लाइफ में जो मैंने इम्प्लीमेंट अभी नहीं किए, लेकिन मैंने उनको एटलीस्ट लिख लिया है कि यार वंस इन अ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम मैं जाके उनको कभी जो है ना इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूंगा. तो एंड आई कीप लाइक मैं उनको प्रायोरिटाइज करता रहता हूँ टाइम के साथ साथ, और फिर एक राइट टाइम आता है कि मैं डिसाइड करता हूँ कि यार अब इस टाइम पे मैंने जो है ना इस प्रोजेक्ट पे, इस आइडिया पे आई हैव टू invest time in, I have to invest resources, I have to invest my effort. So try to fuel the best ideas with effort, resources and time. एंड इनफैक्ट आज एक पर्सनल आइडिया है जादू के नाम से, मैं आपको उसके भी बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. दैट वाज समथिंग दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और उसको बताने का भी आपको यही मकसद है कि कैसे आप अपने आइडियाज को सिर्फ आइडियाज तक नहीं रहने देते, बट यू कैन एक्चुअली टेक देम टू अ रियल फॉर्म, एंड देन वी कैन ओपन अप द क्वेश्चंस. तो पॉइंट यहाँ पे कहने का यही है कि ऑल यू नीड इज द करेज टू ट्राई. And who will give you that courage? Nobody else. You yourself will give yourself that courage. You yourself will find that motivation, that inspiration. करेज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर करेज नहीं होगा ना तो आप कभी भी चीजों को ट्राई नहीं करेंगे. सो ट्राई टू डेवलप द करेज. और करेज डेवलप करने के देयर आर फ्यू वेज टू डू दैट. आई कैन गो अ लिटिल बिट डीपर लेटर अगर कोई इफ समबडी आस्क्स, बट ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस. Because the magic happens, where you leave your comfort zone. So try to go out of your comfort zone to do things which will really, really scare you. I have done so many things that scare me, but I love it because they put me in a tough spot and they also challenge me, and that's where I actually get my courage. तो यही आपने अब सोचना है कि यार व्हाट इज योर मून शॉट. कि अगर आज जनवरी 8 है, और अगर आज से 6 महीने बाद लेट से जनवरी जून 8 है या जुलाई 8 बनता है, तो उस दिन कौन सा वो प्रोजेक्ट होगा जो आप लॉन्च कर रहे होंगे. यू हैव टू थिंक अबाउट दिस. यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन मून शॉट. यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन प्रोजेक्ट्स, योर ओन थिंग्स दैट यू. और हो सकता है प्रोजेक्ट ना हो सकता है आप कहें कि यार जून 8 को जो है ना आई शुड बी एबल टू गेट अ फुल टाइम जॉब, या जून 8 को जो है ना आई शुड बी एबल टू बाय अ कार फॉर माई सेल्फ, या जून 8 को जो है ना मैंने ये करना है. सो मूनशॉट का ये नहीं कि आपने सिर्फ कोई प्रोजेक्ट करना है. एनीथिंग, लाइक ट्राई टू सेट अप अ गोल व्हिच इज 10x एंड ट्राई टू फॉलो थ्रू दैट. द गुड न्यूज इज कि एक बड़ी जबरदस्त सी टेम्पलेट है जो यहाँ पे दी हुई है. आप जाके सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगी. इट्स कॉल्ड द 5-year मूनशॉट प्लानर, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट टू सेव इट एज वेल. सो इस पे आप लिखते हैं कि जी मेरा 5 year का क्या मूनशॉट है, आज से 5 साल बाद व्हाट शुड आई बी डूइंग, and what are the concrete objectives that you want to get to be able to get to your moonshot. और 3 उसमें आपने जो है 1-year goals लिखने हैं, which will eventually help you get to your 5-year goal. तो गोल सेटिंग जो है वो बड़ी जरूरी, क्योंकि अगर आप देखें आप में, मुझे बड़े यंगस्टर्स आके कहते हैं जी हमें भी बड़े जबरदस्त आइडियाज आते हैं. तो भाई शेख चिल्ली और हम में ये फर्क है कि शेख चिल्ली को आइडियाज बड़े आते थे और आते हैं, और इट्स एन इमेजिनरी कैरेक्टर शेख चिल्ली, बट उन आइडियाज को ही वाज नेवर एबल टू पुट इट इनटू रियल फॉर्म. एंड आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन शेख चिल्ली एंड यू शुड बी कि you should be able to put all those ideas in reality. And once you start putting those ideas into reality, so you will get so good at it, okay, you will just feel very, very happy
about doing things. I'm happy you're happy. So yeah, I think Google say जो है ना, this got triggered. Anyways, so the last one is never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. It's the only thing that ever has, which is actually very true. Okay, at the end of the day, if you look at if you look at Jack Ma, if you look at any of the big folks in the world who have done something, तो उन्होंने कोई इस तरह प्लान नहीं किया था कि यार अच्छा हम इतनी बड़ी कंपनी बनाएंगे जो $300 billion कंपनी बन जाएगी और इतने लोग होंगे. 4-5 लोग होते हैं. अगर आप you should actually go and read that book. I'm very obsessed with Jack Ma because of how he did it. He was very smart. उसने अपने कुछ दोस्तों को पकड़ा, 7 दोस्त थे जिनको co-founders बनाया, उनको पकड़ा, उन्होंने प्रॉपर फिल्म की अपनी जब वो स्टार्ट करने लगे थे. तो इसी तरह it's basically just people like you and myself who decide to actually do something phenomenal. So never doubt it's actually a small group of people who's actually able to bring the change. People like just like you and myself. तो हमारी communities हैं, प्लीज इन कम्युनिटीज का पार्ट बने. दीज कम्युनिटीज exist all across Pakistan. आप भी इसमें कम्युनिटी का पार्ट है, which is DSC. But there are other communities as well. Google developer groups, women tech makers, launchpad भी है Google for startups का, experts की community भी है. तो communities का part please जरूर बने. And before we move on to the questions part, I want to introduce एक project जो मैंने खुद launch किया है. It actually got launched today. It is called jadujobs.com. और ये मैंने, if I tell you very honestly, it took me actually 10 years to launch this project. Why? Because it was always in my head somewhere, but I was not able to put the right timing to it and the right. It's a personal project. Like मेरा अपना personal इसकी कोई affiliation नहीं Google के साथ या किसी और के साथ. And अभी जिस तरह comment पे भी हसाम कह रहे हैं कि it really took me 10 years to get to this point to be able to understand what I really want to do and how I want to put it out there. Or if you look at my profile, if you look at my LinkedIn, तो मैंने काफी ज़्यादा projects launch किए हैं. So this is just one another project, but the timing has to be right. The understanding has to be right. Okay, right now is the best time. Okay, we build the best talent from Pakistan and we export it remotely. अभी तक जो मुझे पाकिस्तान के टैलेंट के साथ इशू रहा है वो ये रहा है कि यार कोडर्स तो बड़े अच्छे हैं. अभी भी मैं आप में से सबसे पूछूंगा ना कि यार कोडिंग किस किस को आती है, तो कुछ होंगे जो अच्छे होंगे, कुछ होंगे जो जुगाड़ू होंगे, कुछ होंगे जो जरा इधर उधर स्टैक फ्लो ओवरफ्लो से या ऊपर से कहीं से निकाल लेते होंगे. लेकिन जब मैं सबसे पूछूंगा ना कि यार तुम लोग बना तो लेते हो, कोड तो लिख लेते हो, बनाना क्या है, उधर मुझे इतने ज्यादा यंग लोग नहीं मिलते who are able to think for themselves. So the reason I launched जादू is कि यार हम ऐसा टेक टैलेंट क्रिएट करें कि जिसको टेक्निकल स्किल्स तो हम दे ही रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स तो वो सीख जाएंगे, बट हाउ can I do something else with this young talent? Can I give them the power to think, the power to create ideas, the power to think about design, the power to be in a community, to power to not feel hesitant, be very confident to reach out to people, to write emails, to talk to some of the top people in the world? How can I create the superhuman version of the Pakistani developers? So that's why I came up with this. It's a completely remote program. I would highly recommend and request all of you to go and check it out. और अपने और दोस्तों को भी इस पे सेंड कीजिएगा, because I've put in a lot of my personal time and resources into this, and hired a whole dedicated team to be able to run this, ताकि इन्हीं लोगों को फ्यूचर में हम ग्लोबल जॉब्स दिला सकें. सो पीपल who are so good that while sitting at Pakistan they're working for top companies in the world. That's the dream here. That is what I want to do. और again with that I think I'm going to pause here. कि अगर आप में से लोगों के कोई questions हो तो we can open it up. We have time तो हमारे पास है, तो I would be very happy if you have very specific questions. But thank you again for giving me this opportunity to talk to you. I'm going to hand it over to Atik now. बिल्कुल, थैंक यू साद भाई फॉर कमिंग है. पहली बार आप डेटा से आए हैं, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल. और जादू जॉब .pk का जो मिशन है और हम लोगों का जो DSC का मिशन था वो एक्चुअली वेरी सिमिलर है. और मेरे दिमाग में भी काफी आइडिया था बहुत पहले से, लेकिन अच्छा हुआ कि DSC आ गया, उससे प्लेटफॉर्म मिला.
पहले ये था कि स्टूडेंट्स को स्किल सिखाई जाए, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, बंदा एक राइट स्किल सीखे जो कि बंदा फिर वो फ्रीलांस मार्केट पे सेल कर सके। जब एक बंदा एक अच्छा कोडर बन जाए एंड देन ही बी एबल टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेशनल ऑडियंस, अगर वो अपनी स्किल गोरे को बेच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद दो तीन और, अच्छा साद भाई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, टीएससी से पहले मैंने वर्डप्रेस भी सीखा है साद भाई से, आई बीन फॉलोइंग हिज यूट्यूब चैनल, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ साद भाई। और वही सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ उसके लिए। से थर्ड वाज टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स फ्रीलांसर बन जाए तो एक नॉर्मल इंसान ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल बाद खुद बड़ी मेहनत से सीखता है फाइनेंशियल लिटरेसी, कि फंड्स कैसे रेज करने हैं, कैसे सेविंग करनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में हम लोग रॉबर्ट कियोसाकी के मॉडल्स फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ इज के जब आपको स्किल भी आ गई, आपको जो है फ्रीलांसिंग से आपको एक्सपोजर ही मिल गया, फाइनेंशियल लिटरेसी भी आ गई, उसके बाद लास्ट पॉइंट इज के आप अपना स्टार्टअप बनाए। और वाई कॉम्बिनेटर का एक स्टार्टअप स्कूल है जो 3 महीने का होता है, ऑनलाइन उसकी है, तो उसके लिए लोगों को प्रिपेयर किया जाए। एक लव साथ मैंने यूज किया कॉल डाइवर्सिटी। जैक मा की मैंने बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक लेक्चर है यूट्यूब पे स्कोल्वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, और ये 2 घंटे की वीडियो है, मैंने देखी थी। तो आई एम दैट गाय कि कोई भी आइडिया देखता है तो उसको फौरन इंप्लीमेंट करना है मुझे, मतलब इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो मैं बिलीव नहीं करूंगा। तो उस 2 घंटे की वीडियो में मैंने डाइवर्सिटी सीखी, और उसमें यह था कि कोई भी जिंदगी में आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, वेदर इट शुड बी फ्रॉम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ही सेड के देयर शुड, जैसे अलीबाबा के अंदर देयर इज 49% ऑफ वुमेन इन द टीम, तो ही सेड के यू शुड ऐड वुमेन इन द टीम। व्हेन आई स्टार्टेड डीएससी, हम लोग के, तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास काफी अच्छे दोस्त थे साथ। तरुण एंड बहावल, यू वोंट बिलीव दिस, लेकिन वो 7th सेमेस्टर में होके दे आर रियल डाटा साइंटिस्ट वर्किंग एट अ फर्म। वी हैव रहू, हु इज, जितना भी ग्राफिक की आर्ट्स देखते हैं आप सारी वो रहू बनाते हैं, एंड वी हैव अदर कोर टीम मेंबर्स वर्किंग रियली हार्ड। तो डाइवर्सिटी वी डिड द सेम थिंग, मैंने कहा ये आइडिया है, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी टीम के अंदर, इम्प्लीमेंट किया, एंड आई कैन प्राउडली से कि वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन डीएससी ऑल ओवर पाकिस्तान। तो यस, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चैट बॉक्स में कर लेते हैं, या आप बोले तो माइक खोल लेते हैं। Whatever works, बेशक कोई unmute करके if they want to ask or they wanted to ask any specific question in the chat box, so I'm pretty open. Oh, okay. Should I go ahead, Atik? Yeah, yes, sir, go. Okay, Saad bhai, thank you very much for coming. This is Tarun Kumar. Atik ne mentioned kiya hoga, I worked with him on the Python bootcamp and everything. Along with Pavel, I kind of एक vision था कि सिर्फ पाइथन की तरह नहीं सिखाई जाए, बट इंस्टेड एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स बनाए जाएं, फ्रीलांसर्स बनाए जाएं, जो जाके गोरे को तो बेशक वो तो प्रायोरिटी है कि कोई चीज़ सेल कर सकें, कोई चीज़ इतनी टेक्निकली तरीके से उसको सेल तो कर सकें, लेकिन कंट्रीब्यूट भी कर सकें। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में आप अगर नॉर्मल कोई डेवलपर उठा लेंगे बाहर से, तो दे हैव लिटरली थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑन देयर गिटहब प्रोफाइल, तो मतलब एक उसका कुछ अर्न नहीं कर रहे वो लोग, बट स्टिल दे आर सो टेक्निकल एंड सो एडवांस इन देयर क्राफ्ट के दे कैन लिटरली कंट्रीब्यूट टू सॉफ्टवेयर दैट एवरीवन कैन इन द वर्ल्ड कैन सी देयर कोड। तो इस तरीके का जो अपने एक क्राफ्ट में जो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना था, एक अपनी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना था, दैट्स समथिंग आई काइंड ऑफ सपोर्ट। अच्छा, तो शायद भाई जो आपने मेंशन किया कि योर platform Jadu, I was really impressed with the idea behind it, and I really wish you best of luck कि जिस तरीके से आप इसको लेके जाना चाहते हैं आगे, and the idea of not having people to pay up front and rather pay later, like kind of like a कर्जे हंसना kind of stuff कि भाई आप सीख रहे हैं, कुछ earn कर रहे हैं, तो pay back, and it kind of वो ये कि community build होती है proper इसकी, जो बंदा सीखेगा वो इन्वेस्ट भी करेगा दूसरों के लिए ताकि वो भी सीख सकें। सो द क्वेश्चन आई हैड इज के अब गूगल ने दे ट्राइड दे एंड दे फेल्ड विद सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि गूगल एलो हो गया, गूगल प्ले म्यूजिक हो गया, गूगल प्लस। एप्पल ट्राइड समथिंग एंड दे फेल्ड एज वेल। न्यूटन्स थे उनके एक फैबलेट किस्म का एक वो था, पॉकेट हैंडल डिवाइस थी उनकी। सो दे कुड अफोर्ड दीज लॉसेस। मतलब how do we, as most of us belonging to a middle class, create plans, और मतलब plans वगैरह, businesses के plans वगैरह चाय के ढाबे पे बैठ के बनाते हैं।
how do we get out of this fear of failure? How out of this fear of fear of failure or losing money or not recovering? मतलब गूगल एंड एप्पल कुड अफोर्ड दीज लॉसेस, इतने बड़े बड़े मेजर प्रोडक्ट्स उनमें जिनमें टाइम इन्वेस्ट किया है, जिसमें अपने पैसे अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, एंड दे कुड अफोर्ड दीज लॉसेस. वी एज मिडिल क्लास स्टूडेंट्स या ऐसे बंदे जिनके सोसाइटी या कल्चर में ऐसा कंफर्ट जोन है कि उनको बस एक जॉब चाहिए, जैसे आपने मेंशन किया था, बस एक जॉब आ जाएगी, फ्रीलांसिंग करके थोड़ा कमा लेंगे. हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस होल comfort zone and fear? Zabardast. Thank you, Tarun. Thank you so much. Very well structured context. So I really want to appreciate the way you communicate. Really love it. And साथ question भी जो है बड़ा focused है. So I'll try to answer or share some of my opinions on that. So if you see, अच्छा Google जो है ना वो ज़रा ज़्यादा मशहूर है in terms of killing products. If you go on Google and you search for Google Graveyard, you will literally find a website that lists down the list of products that Google actually kills. As compared to any other company, Google is actually very, very famous for, like killing products very fast. एक तो point आ जाता है कि, when you think कि a company like Google can afford to fail. So I do not fully agree with that. So even at companies like Google, badi companies, when teams fail, they meet a bad fate. और ये मैंने देखा है कि in fact the stakes are higher in a company like Google, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो पूरी टीम फायर हो जाएगी. और ये मैंने I've heard of this. Again, I've not seen this, but I know of this कि होता है कि एक पूरी डिवीजन है जिसको कहा जाएगा कि जी अच्छा आप तो pack your bags because you're not able to build a business case. तो stakes are actually higher in bigger companies, जिधर प्रोडक्ट अगर फेल हुआ तो आपकी पूरी टीम है जो जाएगी. जबकि आई थिंक व्हेन यू आर यंग द स्टेक्स आर लेस. और इसका एक बहुत बहुत जबरदस्त जो कीवर्ड है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसको कहते हैं पॉल ग्राहम, जो वाई कॉम्बिनेटर का वन ऑफ द फाउंडर्स. ही सेज के जो फाउंडर्स होते हैं ना, दे ओनली नीड रामेन प्रॉफिटेबिलिटी. देयर इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी, रामेन प्रॉफिटेबिलिटी. रामेन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है भाई? कि जी मैंने जो है ना इतना मैं बस पैसे कमा लूं कि मैं जो है 3 वक्त की रोटी खा सकूं बस, एंड मैं अपने बाकी सारे खर्चे जो है ना वो बंद कर दूं. और मैं आपको ये बता सकता हूँ, लेट मी टेल यू तरुण, दिस एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन आउट देयर एज वेल. दिस इज द मोड दैट आई गो इन. This seems like a very simple project, Jadoo, to you. You have no idea कि पिछले 6 महीने में how crazy I was about this. I told my wife कि you might not see me for the next couple of months. And क्योंकि I'm going to be very busy with this, I put in some of my own money as well to launch this, and I cut my all expenses. Even though I could afford those things, लेकिन मैंने कहा यार नहीं, मैं इसको cut down कर रहा हूँ because I want to launch this. So I think if you look at it, हमारे पास तो ज्यादा टाइम होता है, क्योंकि हम गोरा कल्चर भी नहीं पाकिस्तान में. आपको पेरेंट्स ये नहीं कहते 18 साल बाद कि यार घर से प्लीज जो है ना निकल जाओ और अपना घर जाके ढूंढो. आप चाहें तो बेशक सारी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहें. And I'm telling you, very in reality these things, like I live with my parents. I have 2 kids, mashallah, but I live with my parents. मुझे आज तक नहीं सोचना पड़ा कि यार घर का जो है ना वो अलग से किराया भी देना है, ये भी देना है. तो आई थिंक कि हमारे पास तो ज्यादा कुशन होता है इन द साउथ एशियन कल्चर. हमारे केस में सिर्फ जो मसला होता है ना वो होता है स्टिग्मा. और स्टिग्मा होता है कि जी अच्छा फेल करके ये होगा वो होगा. उसके लिए एक ही सोल्यूशन है भाई. वो सोल्यूशन ये है कि आप हो जाएं बेशरम. अगर आप मेरी तरह होंगे और आप अपनी एज में जल्दी जो है ना यंग एज पे बेशरम हो जाएंगे, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके चाचा फुफ्फा मामा क्या कह रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि आपकी चीज चल रही कि नहीं चल रही. एज लॉन्ग एज आपको मजा आए, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं रुलते गए हम परचस बड़ी आई है. अगर आपको मजा आ रहा है तो आप बेशक फेल भी हो जाएंगे, आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे. एंड लेट मी टेल यू दिस, आई नो founders who failed at what they were building and then they got super amazing jobs.
because they failed at something that they love doing. So eventually, if you have faith in yourself, you will figure out ways to fight these stigmas and ये जो इर्द गिर्द के मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि मैंने आई वर्क विद अ लॉट ऑफ फाउंडर्स एंड आई हैव सीन के हर किसी के साथ जो है ना ये मसले मसाइल चलते रहते हैं. तो खैर एनीवेज दैट वाज द बीइंग माइंडफुल ऑफ टाइम एज वेल, बट दैट वाज माय टेक ऑन दिस. साद भाई, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो जूनियर एयर और सीनियर रहती है, और आज या कल या अगले साल तक उन लोगों को अपना FYP बनाना है. तो FYP बनाने के लिए आप मतलब क्या टिप्स वगैरह होंगे आपके? और सेकंड थिंग इज के वाई कॉम्बिनेटर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपने स्टार्टअप को आप इंक्यूबेट करवाए वहाँ पे. तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल सही है. सो आई थिंक FYP का तो सिंपल रूल ये है कि यार FYP should be the sort of project which you should be able to take it beyond your university as well. खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर और CS के स्टूडेंट्स हैं. मेरा FYP क्या था, आई रिमेम्बर इट वाज अ क्वाड रोटर, जिसको अब ड्रोन कहते हैं आप लोग. हमारे जमाने में उसको क्वाड्रोकॉप्टर या पता नहीं क्वाडकॉप्टर कहते थे. और वो उसके बाद पूरी एक इंडस्ट्री बन गई. इट्स लाइक $1 billion इंडस्ट्री नाउ व्हिच इज ड्रोन्स. We were never able to commercialize it, but I think anyone who's working in software should be able to build something that they can commercialize later. So look at the problems which you can solve and don't look at the software में तो 15,000 जो है ना open areas हैं. Look for open source things that you can contribute in and problems that you can solve. For example, आपका जी local करियाना shop है, इसको कोई एक the system चाहिए which is cloud based. So go and solve that kind of a problem. Solve a unique problem. Don't bring unsexy problems which do not. जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटी में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, तो पूरे पता नहीं 10 साल जो है ना उधर वो ट्रैफिक सिग्नल लाइट का जो वो है प्रोजेक्ट वही चलता रहा है. मतलब डोंट बिल्ड इन अनइनोवेटिव थिंग्स, डू नॉट वेस्ट योर ओन टाइम, बिल्ड समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ, जो आप बाद में जाके दिखा सकेंगे यार ये बनाया था, दिस इज व्हाट वी बिल्ट एंड दिस इज व्हाट वी नो अबाउट. सो FYP का तो ये रूल है. जहां तक बात है एक्सेलेरेटर प्रोग्राम्स की, मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि वाई कॉम्बिनेटर पे जाने से पहले ट्राई टू बिल्ड अ केस कि आपको यहाँ पे लोकल इंक्यूबेशन कहीं मिल जाए, बिकॉज वाई कॉम्बिनेटर इज अ लिटिल हार्ड टू गेट इन टर्म्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स. तो पहले अगर आप यहाँ पे कुछ बना लें, यहाँ ट्राई टू बिल्ड समथिंग फॉर द लोकल मार्केट एंड हैव सम सॉर्ट ऑफ अ sustainability program for it, and try to see if you can maybe make sense of it, make its viability, feasibility. Then go and look for international बड़े जो platforms हैं like Y Combinator या इस तरह के कुछ. तो ये मेरी वैसे ओवरऑल जो है ना वो सजेशन होगी. थोड़े से क्वेश्चन मैं जल्दी से उससे भी ले लेता हूँ चैट से. So there is a question by Hassam which is about being hyper optimistic, and how do you maintain being very very optimistic. ये अच्छा सवाल है. It's also like I can give you examples. See, being hyper optimistic means that you will surround yourself with positivity, you will surround yourself with motivation, you will surround yourself with good people. So every day you wake up, you're positive, you're hyper optimistic. I do that. So I try to make sure कि कहीं भी मेरी लाइफ में टॉक्सिसिटी आ रही है या कोई टॉक्सिक लोग आ रहे हैं या कोई चीज आ रही है जो मुझे बॉदर कर रही है, आई एम वेरी गुड एट throwing it out. So you have to develop a lot of emotional intelligence, and you also have to develop an environment in which you are happy all the time, you're high on happiness, and eventually you'll be able to be very very hyper optimistic. I don't know if that answers the question, but that's a mechanism through which I have been able to create hyper positivity and hyper optimism for myself. एक और क्वेश्चन है कि startups are increasing rapidly and some even startups in university. Stakes are high in Pakistan and fourth revolution effects are coming. Should we get some experience in one particular field and emphasize on getting the future skills started when we just get the idea? यार मेरा इस पे ये पॉइंट है कि आप इतना इसको कंफ्यूजिंग ना करें. आप लोग बस कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें जिसको बनाने का आपको मजा आए, एंड दैट project will eventually teach you skills which will stay with you. That will probably teach you some technical skills,
that will probably teach you some soft skills, that will probably teach you some life skills. So just the point is, like, get started, get your hands dirty, and eventually you will be able to find कोई एक चीज जिसको आपको मजा आता है करने में, and that's something that you can actually spend time with. फिर एक है शहाब का क्वेश्चन के आई एम डेडिकेटेड my question is dedicated to learn skill ML web or anything, following people, then he start learning phase come when you realize कि मैं बहुत पीछे हूँ, सब आगे हैं, तो इसका क्या किया जाए? So I think you're talking about motivation. That is perfectly fine if you see कि यार people are ahead of you, because then you can use that opportunity कि जो लोग आगे हैं उनसे कहेंगे यार मुझे मेंटर करो, और ये सबसे बेस्ट काम है कि जो आप लोगों से आगे हैं उनसे आप कहेंगे यार मुझे मेंटर करो, मुझे सिखाओ, एंड also try to create a circle for yourself where you are mostly with the same kind of peer का आपका सर्कल इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप एक लेवल पे हो. तो अगर आपसे कोई आगे भी निकल गया तो you can always just be in the same circle and be like, hey, we need to learn from each other. So try to create a good sounding board, a good kind of mechanism in which you don't feel demotivated अगर कोई आपसे आगे निकल गया. Rather you take help from them, or you try to be a part of the same community. Asim ka question, I really appreciate Google DSC, but why Google can't we create our own Pakistan DSC as you have created Jadoo? So ये आपका अच्छा सवाल है. पहली तो बात है कि Jadoo has no affiliation with Google, it's a personal project. Pakistan DSC as a brand अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है गूगल का that's affiliated with universities पूरी दुनिया में. So there is no such concept of a Pakistan DSC. It's more like chapter based DSC. So अभी जिस तरह आप लोगों का चैप्टर है इस तरह यूनिवर्सिटीज का चैप्टर भी है. तो इसका मेरे पास इसलिए अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं है, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल प्रोग्राम गूगल का, दैट्स हाउ दे रन इट. दे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि किसी टाइम पे पाकिस्तान डीएससी ओवरऑल एज अ ब्रांड भी आए, एंड लेट्स सी. बट जब तक वो नहीं होता वी कैन ऑलवेज you can always interact with your own DSC और इस तरह के जो similar programs हैं. बाकी समर का एक क्वेश्चन है कि when are you introducing the data science fellowship at Jadoo? It will really depend on how successful this goes. अभी हमने launch जो किया प्रोग्राम वो है full stack developer पे, because I think there's a lot of opportunity with full stack. People who want to go into design, people who want to build apps, people who want to go from that to build mobile apps, and people who want to take that trajectory and path. So once we start with that, to eventually maybe we can even open up a data science fellowship as well. I'm not opposed to that. Maybe that's something that I'll have to think and see. And Ritik का एक question है, वही वाला same. I think it's the same question. Data science fellowship का, again thank you Ritik for the you I think you were part of that podcast. So see, Muzammil ki podcast में I was a little nervous because that was me putting myself on the spot कि यार अच्छा मैंने अब ये कह दिया तो मैंने अब launch भी करना है. So from that time to getting to this time, I feel it's a big achievement. और आप लोगों को भी यही suggestion है कि try to make your goals and stick by those goals, so you feel that heat of कि यार कि आपने कुछ achieve किया है. और तनवीर कह रहे हैं कि I watched your interview with Tahir Ramzan about 3 months internship at Google. I applied for it, application decline होगी. Can you please share your experience regarding the proposal? तो इसका सिंपल मेरा जो एक मैकेनिज्म वो ये है, गूगल समर ऑफ कोड की आप बात करें, which is the 3 month internship at Google. तो I don't know how much research you did, but the simple thing is just there is so much material, there are so many alumni available. अगर आप अपने कुकून में बैठे रहेंगे और आप गूगल समर ऑफ कोड के जो alumni हैं उनसे बात नहीं करेंगे, तो you will never be able to understand what is the code that you need to crack to be able to crack this. So my suggestion is, क्योंकि मैंने खुद गूगल समर ऑफ कोड नहीं किया, मुझे नहीं पता कि किस तरह से उसमें एप्लीकेशन क्या होती है, but I'm pretty sure there are more than thousands of Google Summer of Code graduates around the world. So your action item should be कि कैसे आज मैंने जाके गूगल समर ऑफ कोड के जो सारे लोग हैं उनको लिंक्डइन पे पकड़ना है, उनको अपने पास लिंक्डइन पे ऐड करना है और उनसे पूछना है कि क्या होता है उसकी एप्लीकेशन में, उनके साथ कॉल स्केड्यूल करनी है एंड ये गोल बनाना है. सो
जब तक आप सही मेंटर्स को रीच आउट करके उनसे इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू रीच द राइट काइंड ऑफ गोल्स. तो मेरी तो यही सजेशन है, गो टू लिंक्डइन, फाइंड द राइट पीपल हु हैव गॉन थ्रू गूगल समर ऑफ कोड, ask them, schedule a call with them. Randomly उनको प्लीज मैसेज ना कीजिएगा कि मुझे बताओ यार गूगल समर ऑफ कोड में क्या करते हैं. Try to schedule a call with them, build a relationship, and that's how you'll be able to do it. I'm also being mindful of time because I have to leave in 2-3 minutes. एक last question जो है हसन. Sir, if you don't mind, अब क्वेश्चन मेरा कुछ यूं था कि सपोज यू हैव एन रियली गुड आइडिया, यू थिंक इट विल सक्सीड, बट ऑन द अदर एंड देयर आर सम आइडियाज व्हिच कैन अर्न यू मनी इन अ क्विकर वे, यू कैन कैपिटलाइज ऑन देम. फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ एक बूम है एक कोविड बेस्ड एप्लीकेशन का या इस किस्म के एप्लीकेशन का जो पैंडेमिक पे काइंड ऑफ करने नहीं चाहिए बट कैपिटलाइज कर रहा है, एंड यू कैन रियली अर्न इन द शॉर्ट टर्म राइट नाउ. So what should one really decide कि क्या जल्दी मैं capitalize कर लूँ कुछ पैसे so I can invest in my ideas, or should I go for the idea first? So इस पे you have to create discipline. I think discipline का ये मतलब है कि अगर आप short term में earn करना चाहते हैं तो फिर आपको next अपने आप को एक promise देना है कि मैं 6 महीने एक idea पे काम करूंगा जिससे मैं 1 रुपया भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन I will give my full time to this. I've seen very few people having this kind of a discipline. तो eventually लोग फिर क्या करते हैं, वो फिर पैसे बनाने की रट में लग जाते हैं, their innovation dies. वो freelancing वगैरह में लग जाते हैं. Freelancing I think is good. I've done it a lot myself. I evangelize it, but I also think it kills your innovation. तो try to have a balance. Balance के 2 तरीके हैं. एक ये कि आप अगर अभी 3 महीने को पेड प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो 3 महीने अपने आप को प्रॉमिस करें कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें यू विल नॉट अर्न अ सिंगल रुपी. या आप ये कर सकते हैं, यू कैन स्प्लिट योर टाइम कि अभी आधा टाइम में ये करूंगा, अपने रोज के 5 घंटे किसी पेड प्रोजेक्ट पे लगाऊंगा, एंड 5 प्रोजेक्ट में किसी 5 घंटे में लगाऊंगा किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे थ्रू आई विल नॉट अर्न मनी. आई पर्सनली हैव थॉट, लर्न दिस इन लाइफ कि इनोवेशन अगर आपने करनी है ना तो पैसे विल नॉट हेल्प यू गेट देयर. You need to be able to think and create something that's very radically different. But that would be my quick take on this. Again, sorry for not going a lot deep. But last एक question जो मैं answer करूँगा वो है Sam का, which is about how to do networking. How should we do networking? Yeah, networking का ये rule है कि you have to put yourself out there. Putting yourself out there का क्या मतलब है कि जी अगर आप मीडियम पे एक ब्लॉग आपका नहीं बना हुआ तो आज डालें और उस पर लिखना शुरू कर दें. लिंक्डइन पे लोगों को ऐड करके उनके साथ कॉलिंग स्केड्यूल करना शुरू कर दें. इट्स अबाउट बीइंग बेशरम, एज बीइंग आउट देयर, पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, being outside your comfort zone. In fact, that's one of the reasons कि अभी जादू में one of the things that we have decided is that every fellow will have to write a blog every week. So these are some of the things that we're going to force our fellows to do, because we know these things will actually help you become a better person, and these things will help you kind of bank on and create those skills जिसका आपको help होगी. और वैसे तो again I have to run, but I'm just going to quickly answer Ritik का जो last question है, which is what do you think about working remotely in the field of DS or in 4th industrial revolution technologies? I think remote work is not the future. Remote work is the present. Like, that's my final verdict on this. You see this happening all around the world. We have arrived. The pandemic has told us that remote work is here. There is no reason where you can't do anything remotely as long as it's powered by technology. So ये मेरा I think आज का again last verdict है. Would like to thank Atik and the whole team here for giving me this opportunity. वो time इतनी जल्दी गुजरता है, इतनी मजे की बातें हो रही होती हैं, लेकिन I hope we'll stay connected. And yeah, Atik, over to you. Thank you Saad bhai for tuning in. Very thankful. आपको जाना होगा, आपको जा सकते हैं. इंशाल्लाह फिर हम लोग फ्यूचर में भी और इवेंट रखेंगे आपके साथ. Excellent. Thanks to everyone. Thank you, Atik. Love this session. I'm now going to go and put my kids to sleep. But have a great time. Have a great week ahead. Thank you for inviting, and I hope you enjoyed. I hope you learned. Take care. Allah Hafiz. See you soon, inshallah. Thank you, sir. Allah Hafiz.